biology labs. Art and craft, dance and music, computer education is introduced at the level of first 2 onwards. Smart classes thus enabling the young students to acquaint with the concept quickly and at ease. Hello. Morning assembly is a part of our tradition. All the students are together, they meditate, they discuss their daily routine. This develops a feeling of connection and unity among the students. Hello everyone, I'm Radhika from class 8. I would like to share my opinion in front of you. Education is a compassion which no future can snatch, no enemy can destroy, no crime can align, and no nepotism can inflame. Yes, we are different from others. We don't make students performers. Overall development of the students is the main priority of our school. There are many schools in every street, but it's a matter of result which we present with qualitative and quantitative manner. The main duty of the school is to uncover the hidden talent of the students, to enable the students to find themselves in line with the new education policy. Along with getting education, the students also acquire moral values, moral ethics, etiquettes, and good behavior knowledge. Sports and many more co-curricular activities are always there to guide them. What deserves the best, let's be part of SN family. And by the way, winners don't do different things. They do things differently. Srinaval Grid School believes in so. So, it's time. Let's go to SN school and achieve our dreams and goals and aspirations. Hello. हाँ ठीक हेलो हेलो जैसा कि आपको विदित है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। अपनी अपनी आए हुए जो गेस्ट हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और मुख्य अतिथि महोदय का खड़े होकर के स्वागत करेंगे सभी एक साथ। हेलो हेलो काफी शानदार दृश्य मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं और अन्य गणमान्य अतिथि भी पधार चुके हैं। बहुत ही शानदार एस्कॉर्टिंग बाय एनसीसी एंड स्काउट्स, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि एक महान सेलिब्रिटी हम जिनको हम कह सकते हैं, जिनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे बीच आज पधार चुके हैं। अभी कुछ ही समय में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, तो कृपया करके आए हुए सभी मेहमान अपनी अपनी जगह पर, बच्चे हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं।
जो भी अभिभावकगण आए हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आराम से बैठिए। अभी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। आए हुए सभी विद्यार्थीगण जो भी जिन जिन विद्यालयों से आए हैं वो आगे अपने जगह पर बैठें। गोविंद जी ने बताया वहां क्लास 1st to 3rd क्लास तक के जो बच्चे हैं वो इस साइड में बैठेंगे और 4th 5th 6th के भी इधर बैठेंगे। 7th 8th 9th 10th तक के 11th के बच्चे हैं वो उस साइड में बैठेंगे। अभिभावक हैं जहां प्रॉपर व्यवस्था है बैठने की, आप विराजें, बैठे। अभी कुछ ही समय में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। सभी अभिभावकगण कृपा करके बैठें। कृपया शिक्षकगण ध्यान दें, सीटिंग व्यवस्था को प्रॉपर चेक करते रहें। पीटीआई जी कृपया ध्यान दें, जो स्काउट्स गाइड हैं वो गेट के पास खड़े हैं। यूजी चेक करें। अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो उधर खड़े नहीं रहने चाहिए, गैलरी में इधर बैठ जाएं सीटों पर। जो अभिभावकगण हैं उन्हें भी इधर सीटों पर बैठाएं। स्कूल डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगा दीजिएगा सर थोड़ी देर के लिए। Hello, I am Krishna from class 5. I would like to tell you that this school is 116 years old. Cultural activities and science projects and sports activities are organized very well. I am a fresher student here. Really, I feel it is very good school. I participate in all the programs like debates, dance, song, kabaddi, volleyball, badminton, etc. This school is heart of Nawalgarh, which establishing situation makes it special. First year in the school. At first I was new here, but now I am feeling very well here. Here all teachers are learned and confident here. It is very nice school. It is very lovely and part and piece of my daily life. You are also invited to join your iStars here. Welcome to the world of possibilities. Welcome to Sri Nawalgarh Senior Secondary School, governed by Sri Nawalgarh Vidyalaya Committee, Kolkata. It needs a perfect ambience to nurture a child, and we nurture the future of India, the future of our nation. Our vision to impart quality education to the children who are going to be the future citizens of our country, without any discrimination of caste, color and religion. Renu ma'am, she teaches us computer. She is very hardworking. She always comes in school at time. I respect her so much. Thank you. Our mission: enable
the children to be more efficient to do their day-to-day responsibilities and inculcate the moral values that will make them the true citizen of the country. Education is such a powerful medium by which students can materialize his dreams. The main aim of education is to attain providence and beauty. In imparting education, the school aims to guide the students through a system beyond pure academic achievement into something which is full of total responsibility. Besides the regular subjects pertaining to the RBSc syllabus, school provides computer education, well-versed physics, chemistry and biology labs. Art and craft, dance and music, computer education is introduced at the level of first 2 onwards. Smart classes thus enabling the young students to acquaint with the concept quickly and at ease. Morning assembly is a part of our tradition. All the students are together, they meditate, they discuss their daily routine. This develops a feeling of connection and unity among the students. Hello everyone, I'm Radhika from class 8. I would like to share my opinion in front of you. Education is a compassion which no future can snatch, no enemy can destroy, no crime can align, and no nepotism can enclave. Yes, we are different from others. We don't make students bookworms. Overall development of the students is the main priority of our school. There are many schools in every street, but it's a matter of result which we present with qualitative and quantitative manner. The main duty of the school is to uncover the hidden talent of the students, to enable the students to find themselves in line with the new education policy. Along with getting education, the students also acquire moral values, moral ethics, etiquettes, and good behavior knowledge. Sports and many more co-curricular activities are always there to guide them. So what deserves the best, let's be part of SN family. And by the way, winners don't do different things. They do things differently. Sri Navalgad School believes in so. So, it's time. Let's go to SN School and achieve our dreams and goals and aspirations. Other initiatives. We regularly conduct parents and teacher meetings so we can share students' progress with the parents and our expectations from him. Here in our school, we also distribute milk and biscuits to kindergarten students. We do organize educational tours for recreation and experiential learning. It will help students to deepen their learning. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में नवलगढ़ ही नहीं वरन शेखावाटी के सबसे प्राचीन विद्यालय श्री नवलगढ़ विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये समारोह जैसा आप जानते हैं SN टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 में जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया उन सबका सम्मान और उनका पारितोषिक वितरण होने जा रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर समित जी शर्मा, जो इस समय शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर सचिवालय में बैठते हैं, और उसके साथ हमारा सौभाग्य है कि झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव भी आप हैं। विद्यालय प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा, 1907 में आज़ादी से पूर्व जब आम आदमी को शिक्षा मिलना एक बहुत दूर की बात हुआ करती थी, तब नगर के भामाशाहों, सेठों, साहूकारों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया और सन 1907 में गंगा माई के मंदिर में एक पौधा लगाया संस्कृत विद्यालय के रूप में, क्योंकि 1907 में वो समय था जब धर्म शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा आदि ही प्रचलन में थी। और 1907 में गंगा माई के मंदिर में संस्कृत विद्यालय के रूप में प्रारंभ हुआ वह पौधा आज वटवृक्ष बन चुका है। और श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी के तत्वावधान में एसएन गर्ल्स पीजी कॉलेज महिलाओं के लिए, एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज महिलाओं के लिए और एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसके प्रांगण में हम आज बैठे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की तीनों संकायों का अध्ययन अध्यापन यहाँ करवाया जाता है। इस प्रकार नवलगढ़ विद्यालय कमेटी नवलगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। नवलगढ़ का विद्यालय कमेटी कोलकाता के सम्मानित अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी जालान, श्री ओम प्रकाश जी जालान एवं श्री पवन जी जालान के मार्गदर्शन में विद्यालय की संस्थाएं, प्रशासनिक अधिकारी श्री सुनील जी सैनी और प्रधानाचार्य श्री नवीन जी शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक सम्माननीय श्री यशवर्धन सिंह जी शेखावत हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे आज के समारोह के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच आसन ग्रहण करें। बंधुओं, विद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि 2 ऐसी विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं जिनके बारे में अधिक परिचय देने की जरूरत नहीं है। जो भी शासन, प्रशासन और सामाजिक जीवन से सरोकार रखते हैं वो सब जानते हैं कि डॉक्टर समित जी शर्मा ने अपना जो कैरियर शुरू किया वो एक चिकित्सक के रूप में। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी कोई डॉक्टर लगाता है तो लोग उनको एकेडमिक डॉक्टर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये वास्तव में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और उसके बाद प्रशासनिक सेवा में आते हुए इनकी नियुक्ति चित्तौड़गढ़ और नागौर में रही। ये पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हुए, जिला कलेक्टर हुए, जिनके ट्रांसफर पर चित्तौड़ और नागौर में 5 दिन बंद रहा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जनता से उनका कैसा जुड़ाव है और जनता उन्हें कितना स्नेह करती है। जमीन से जुड़े व्यक्ति और आज प्रशासन के उच्च पद पर होकर भी सहज और सरल रूप से हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हुए। हम अभिभूत हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करने से पूर्व, जैसा कि ये विद्या मंदिर है, माँ सरस्वती का प्रांगण है, तो माँ सरस्वती की आराधना वंदना करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। लो मैं करा दूं, लो हाथ धो, लो एक पादोर पाद्यम मस्तुवर्ग्यम मुखे आत्मनियम सर्वांगी स्नानम समर्पयामि। मोड़ी तोड़कर गणेश जी पर स्नानान्ते वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि।
गंधद्वारां दुरादुषां नित्यपुष्टां करिष्णे ईश्वरीय सर्वभूतानां तां योपय श्रियं गंधं विलेपयामि गंधान्त्यक्षतानि समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यतादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरकृतानि च आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि तो जल छोड़ दिया आचमनीयं समर्पयामि दीप प्रज्वलित करो शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगत व्यापिनी बीणा पुस्तक धारणीं अभयदान जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विद्यति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। अरे एक मिनट तो यार, माँ सरस्वती की आराधना के पश्चात अतिथि देवो भव, ये हमारी सनातन परंपरा रही है। बचपन से ही हमें प्राचीन काल से जो शिक्षा दी जाती रही है उसका अनुसरण हम करें और वही संस्कार हम बच्चों को दें, ऐसा हमारा प्रयास है। बचपन से ही हमें यह सिखाया गया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, आचार्य देवो भव और साथ साथ अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं आदरणीय डॉक्टर समित जी शर्मा और हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय यशवर्धन जी शेखावत से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारें और विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुनील जी सैनी और प्राचार्य आदरणीय नवीन जी शर्मा से मेरा आग्रह है कि वे राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक साफा, पुष्पहार, शॉल और दुपट्टा उड़ाकर हमारे अतिथियों का सम्मान करें। ये सर एक औपचारिकता है। आप हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर हमें समय दिया, हम अभिभूत हैं, लेकिन परंपराएं हैं उनका भी निर्वाह हमें करना होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि वो आप मंच पर पधारें। हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक, और सर कार्यक्रम के दौरान लगाए रखें इसको, बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ ही हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशवर्धन सिंह जी शेखावत, और विद्यालय की स्मृतियां आपके मन मस्तिष्क पर सदा अमिट रहें, इसके लिए प्रतीक स्वरूप एक प्रतीक चिन्ह भी हम आपको भेंट करना चाहेंगे। शॉल हमारे सम्मानित अध्यक्ष, आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय यशवर्धन सिंह जी शेखावत, जो जयपुर से हमारे आग्रह पर विशेष रूप से इस आयोजन के लिए पधारे, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साफा, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री सुनील जी सैनी और हमारे प्राचार्य डॉक्टर श्री नवीन जी शर्मा
के सानिध्य में हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार और सम्मान। पंडाल में एक बार जोरदार तालियां बज जाए तो इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता, इसलिए तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सम्मान समारोह चल रहा है, तब तक तालियां जारी रहनी चाहिए। ये प्रतीक चिन्ह विद्यालय की यादें आपकी स्मृति में सदा बनी रहें, इस निमित्त विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत सत्कार और सम्मान श्री यशवर्धन सिंह जी शेखावत। ये हुआ औपचारिक पुष्पहार द्वारा सम्मान, और अपने भावों द्वारा सम्मान करने के लिए विद्यालय की छात्राएं एक भावभीनी प्रस्तुति लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। स्वागत गान के साथ विद्यालय की छात्राएं। चलो स्वागत गान। अतिथियों का स्वागत अपने भावों द्वारा, पुष्पों द्वारा नन्ही बालिकाएं एक भावभीनी स्वागत प्रस्तुति आपके समक्ष मंच पर देने जा रही हैं। एक बार बच्चों के सम्मान में, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजाई दीजिए। सत्र 2023-24 की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, और उसके बाद पिछले लगभग एक सप्ताह से हमारी विद्यालय की बच्चियों ने, विद्यालय की छात्राओं ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति के स्वागत समारोह के रूप में तैयार की है। और ये स्वागत गान विद्यालय की छात्राओं द्वारा। Oh,
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। केसरिया नन्ही बालिकाओं ने अपने भाव इस स्वागत गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। यदि आपको अच्छे लगे हों तो एक बार दोनों हाथ खोलकर पूरा पंडाल जोरदार तालियों से इन बच्चियों का प्रोत्साहन करें। और अब हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार अपने उद्गारों द्वारा विद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य श्री नवीन जी शर्मा, संस्था का परिचय, आज के आयोजन का उद्देश्य एवं अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करूंगा श्री नवीन जी शर्मा, प्राचार्य एसएन विद्यालय नवलगढ़। सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम। नगर सेठ रामसा पीर की पावन धरा पर सभी नवलगढ़ वासियों को श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी द्वारा संचालित एसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एसएन विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं नवीन कुमार शर्मा एसएन विद्यालय की तरफ से आज के SNTSE के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर समित जी शर्मा, वरिष्ठ IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। आप एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है और आप एक शख्सियत नहीं बल्कि आप एक संस्थान है, एनसाइक्लोपीडिया है पूरा, हमारे बीच उपस्थित है। माता बहनों, अभिभावकों, पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय हार से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंचस्थ हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री यशवर्धन सिंह जी जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, हमारी तीनों संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुनील जी सैनी साहब जो बीएड कॉलेज, SNPG गर्ल्स कॉलेज और SN विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आप सभी का हृदय हार से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्य अतिथि के सम्मान में दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा जो उन पर बिल्कुल चरित्रार्थ है। मैं तूफानों से लड़ता हूं, पर्वत से टकरा जाता हूं, हिमालय जैसा स्वाभिमान है मेरा, मैं गीत खुशी के गाता हूं, मैं पथ के कांटे चुनता हूं, फूलों के बाग लगाता हूं, विक्षिप्त दुखी पीड़ित जन को खुशियों के राग सुनाता हूं। अब मैं विद्यालय का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे 117 साल पुराने विद्यालय में कार्य करने का मौका मिला, अवसर मिला, जिसने समाज को आज़ादी से पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दी। नवलगढ़ के सभी भामाशाहों को इसी मंच से साधुवाद देता हूं जिन्होंने शिक्षा रूपी दान देकर समाज के लिए पुनित कार्य किया। सन 1901 में स्वर्गीय सेठ श्री जोहानमल जी जालान के प्रयासों से गंगा माई के मंदिर में संस्कृत विद्यालय खोलकर एक शिक्षा रूपी बीज बोया गया जो आज एक वट वृक्ष बनकर के समाज को आलोकित कर रहा है। वर्तमान में एसएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में लगभग 1500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। एसएन विद्यालय, SNPG गर्ल्स कॉलेज और SN बीएड गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत हैं। वर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी में मानद चेयरमैन साहब श्री बनवारी लाल जी जालान, अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी जालान, उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा जी जालान,
व श्रीमती रश्मि जी जालान, सचिव माननीय पवन जी जालान पदों को सुशोभित कर रहे हैं। सभी भाभाशाहों के लिए उनके सम्मान में 2 पंक्तियां। चर्चा चरित्र के नहीं चरित्रार्थ की होती है, चर्चा चरित्र की नहीं चरित्रार्थ की होती है, पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है। फल पाने के लिए सींचना पड़ता है मूल को, फल पाने के लिए सींचना पड़ता है मूल को। सराहना स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती है, सराहना स्वार्थ की नहीं परमार्थ की होती है। आज हम सब एकत्र हुए हैं एसएनटीएस एग्जामिनेशन में कुल प्रविष्ट 602 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अब जो जीता वही सिकंदर, कौन जीता कौन हारा, कुछ ही समय बाद पुरस्कार वितरण की घोषणा की जाएगी। सभी विद्यार्थी और अभिभावक दिल थाम करके बैठ जाएं। एसएन विद्यालय का परिणाम संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों से सदैव उन्नत रहा है। छात्र का सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। सभी विद्यार्थियों को आज इसी मंच से यह संदेश देना चाहूँगा कि अपना सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, आलोचनाओं से सीखें, आलोचनाओं का बुरा न माने। जब रविंद्रनाथ टैगोर से पत्रकारों ने भारत रत्न का जो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार उन्हें जब मिला तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप अपने आलोचकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत सुंदर जवाब था रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि मेरे आलोचक आज भी वही हैं जहां मैं उन्हें छोड़ करके आया था। ठीक उसी प्रकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही प्रश्न उनके विदेश यात्रा के से लौटने के बाद किया गया पत्रकारों द्वारा कि आप इतनी ऊर्जा से कैसे कार्य करते हैं, कभी थकते नहीं हैं, कभी भी आपके सोने का भी समय निर्धारित है, निश्चित है। तो नरेंद्र मोदी जी बोले, आप जानना चाहेंगे कि मैं इतनी ऊर्जा और इतने रफ्तार से कैसे कार्य कर पाता हूं? तो बोले पत्रकार बोले हाँ, उसका मूल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि रोज प्रतिदिन मैं सुबह उठ करके लगभग 1 से 1.5 किलो गालियां खाता हूं, वही मेरे को ऊर्जा देती है, वही मेरे अंदर नया संचार भरती है जो मुझे कार्य करने की अपार क्षमता प्रदान करती है, मेरे नवीन भारत का कल्पना निर्माण का संदेश मुझे देती है। तो आलोचनाओं से मनुष्य को सदैव सीखना चाहिए। एसएन विद्यालय परिवार निश्चित रूप से इस शेखावाटी और नवलगढ़ के अंदर असाधारण और अद्वितीय है। एक छोटा सा प्रयास किया है कविता के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति का। एसएन विद्यालय हमारा शेखावाटी नवलगढ़ की शान है, इसके गौरव गरिमा पर हम सबको अभिमान है। इसने लगन और निष्ठा का हमको पाठ पढ़ाया है, बढ़ते चलो रुको मत जीवन का लक्ष्य दिखाया है। विद्या का यह मंदिर इसके शिक्षक गण सभी पुजारी अपना तन मन अर्पित करके पूजन के अधिकारी। भव्य भवन विज्ञान ज्ञान के दीप जलते रहते हैं, छात्रों के जीवन पथ को नित आलोकित करते हैं। ऐसी पुण्य ऐतिहासिक भूमि पर शिक्षा का यह देवालय है। अमर रहे सत्कीर्ति बने, यह अपना एसएन विद्यालय है, यह अपना एसएन विद्यालय है। और अंत में सभी माता बहनों को और विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक सूचना और एक सशक्त माध्यम जो पंक्तियां हैं वो आप सभी को निवेदित करना चाहूंगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय ने बहुत ही धीर गंभीर वाणी में विद्यालय का परिचय देने के साथ अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों का परिचय भी दिया। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि का भी जीवन हम देखें तो लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है, आप एक ऐसे अधिकारी रहे जो हर सरकार के प्रिय रहे।
किसी भी पार्टी की सरकार हो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के कर्म योग को आपने जीवन में उतारा और उसी का यह परिणाम है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना आपके द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके द्वारा लाखों मरीजों को लाभ हो रहा है, लाखों जांचें फ्री हो रही है। ये सारी परिकल्पना आपने सरकार के सामने रखी और वो क्रियान्वित हुई। यद्यपि हम सब जानते हैं कि सरकार के फैसलों का क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, और आपने ऐसा एक नवीन विचार सरकार के समक्ष रखा कि आज देश के अलग अलग जगहों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। आज जिस निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर पधारें। और 4 ग्रुप में ये परीक्षाएं हमने आयोजित की थी, तो ग्रुप प्रथम और द्वितीय 2 ग्रुपों में चौथे से 10वें स्थान तक जो बच्चे आए हैं उनको सम्मान करने के लिए मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें। और ग्रुप संख्या 1 और 2, ग्रुप ए और बी के जो बच्चे क्रम संख्या 7 से लेकर 10 तक आए हैं, उन 14 बच्चों के नाम मैं यहां से घोषित करूंगा। बच्चों के अभिभावक यदि साथ आए हों तो विलंब नहीं करें, अपने बच्चों को लेकर तुरंत मंच पर पहुंचकर अपना प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्राप्त करें। चार ग्रुप हमने बनाए थे, प्रत्येक ग्रुप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 स्थान रहे और उसके बाद 10वें तक हमने स्थान छांटे हैं। तो क्रम संख्या 4 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं उनका हम सम्मान करेंगे। अतिथियों से मेरा आग्रह कि वो मंच पर पधारें। जैसा मुझे निर्देश मिला है, हमारे सम्मानित अतिथि, हम सब जानते हैं कि बहुत ही व्यस्त आपका कार्यक्रम है और आपने समय निकाला है, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं एसएन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में, उन प्रथम 3 चारों ग्रुपों के प्रथम 3 प्रतिभाओं को हम सम्मानित करेंगे। अतिथियों से मेरा आग्रह कि वो मंच पर पधारें और जो प्रथम 3 स्थान पर जो बच्चे आए हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूं, उनके अभिभावक साथ आए हों तो कृपया जल्दी करके मंच पर पहुंचे। चलो गाउन पर होगा ना, गाउन ले आओ बच्चा ने नाम तो बोल दूंगे नाम। ग्रुप 1, पहले ग्रुप में देखो ग्रुप 1 है, नाम भी बोलूंगा मैं, सब मंडे एक ऊपर मैं कैसे मैच करता जाएगा। दिव्यांशु वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार जी उपस्थित हों तो कृपया जल्दी करके मंच पे पास आए। ग्रुप ए में प्रथम स्थान पर रहे हैं दिव्यांशु वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार जी वर्मा, क्लास फर्स्ट, इन्होंने 91.43 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिव्यांशु यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो कृपया मंच के पास पधारें। द्वितीय स्थान पर हैं धारा शेखावत पुत्री श्री सचिन जी शेखावत, यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो कृपया जल्दी करके मंच के पास आएं। और तृतीय स्थान पर है दीप्ति
पुत्री श्री लालचंद जी। दीप्ति ग्रुप ए में 3rd रैंक पर आई हैं। दीप्ति क्लास फर्स्ट 84.29% प्राप्त करके दीप्ति। तीनों बच्चे जिनका मैंने नाम बोला है वो तुरंत मंच पे पहुंचे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ग्रुप ए में दिव्यांशु वर्मा पुत्र अशोक कुमार जी वर्मा, धारा शेखावत पुत्री सचिन जी शेखावत और दीप्ति पुत्री श्री लालचंद जी। ग्रुप ए में प्रथम 3 स्थान पर रहे ये बच्चे, इनका स्वागत सम्मान और इनका प्रोत्साहन। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए बज जानी चाहिए। दीप्ति, नन्ही बालिका दीप्ति क्लास फर्स्ट है, पुत्री श्री लालचंद जी। यदि उपस्थित हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत मंच के पास पहुंचें और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। प्रथम पुरस्कार में नगद राशि, प्रथम पुरस्कार 2100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 500 रुपए। इसके अलावा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र आदि सम्मान स्वरूप बच्चों को भेंट किए जा रहे हैं। ग्रुप बी है कक्षा 4 से लेकर 6 तक। इसके बच्चे यदि यहाँ उपस्थित हों तो कृपया मंच के पास आ जाएं। हर्षिता शर्मा, विमलेश शर्मा, सारा बेलीम, तौफीक, हनी जहांगीर, राकेश कुमार जहांगीर। तीनों बच्चे ग्रुप बी में प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं। कृपया जल्दी करके मंच के पास आ जाएं। हर्षिता शर्मा पुत्री श्री विमलेश जी शर्मा, सारा बेलीम पुत्री तौफीक जी और हनी जहांगीर पुत्र राकेश कुमार यहाँ मंच के पास आ जाएं। जो बच्चों जिनको मैं आवाज दे रहा हूं कृपया सीधे मंच पर नहीं जाएं, वो यहां से ड्रेस अप होकर ही मंच पर पधारें। सेकंड ग्रुप में हर्षिता शर्मा, विमलेश जी शर्मा का क्लास 6, सारा बेलीम पुत्री तौफीक जी क्लास 4 और हनी जहांगीर राकेश कुमार क्लास 5। तीनों बच्चे यहां मंच के पास आ जाएं और ड्रेस अप होकर मंच पर पधारें और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। बच्चों के अभिभावक यदि उपस्थित हों तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आए। ग्रुप सेकंड में 3 बच्चे हैं, हर्षिता शर्मा, सारा बेलीम और हनी। ग्रुप सी कक्षा 7 से लेकर 9 तक, इसमें प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं रमन कुमार बाजिया पुत्र मुनेश कुमार जी बाजिया, ऋषा भाटी पुत्री नईम गनी भाटी और निक्की सैनी पुत्री श्री राम जी सैनी। यदि बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित हो तो क्या मंच के पास पधारें और ड्रेसअप होकर मंच पर अपना पुरस्कार लेने आए। जल्दी करके आए। जो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं वो जल्दी करके यहाँ मंच के पास पधारें। रमन कुमार बाजिया, ऋषा भाटी और निक्की सैनी, इनके अभिभावक उपस्थित हों तो कृपया मंच के पास आ जाएं। तीन ग्रुप हुए। चौथे ग्रुप में कक्षा 10 और 10 से 12 के विद्यार्थी, कक्षा 10, 11, 12 के विद्यार्थियों का हमने चयन किया और इस ग्रुप में प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं। पहले स्थान पर है ज्योति शेखावत पुत्री सतवीर सिंह जी शेखावत, दूसरे स्थान पर अभय शर्मा पुत्र श्री मुकेश कुमार जी शर्मा और तीसरे स्थान पर साक्षी सैनी पुत्री श्री राम जी सैनी। तीनों बच्चे और उनके अभिभावक यदि उपस्थित हों
तो उनसे मेरा आग्रह है कि तुरंत मंच के पास पहुंचें और ड्रेस पहनकर और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मैं पुनः एक बात बताना चाहूंगा, ग्रुप डी में जिन 3 विद्यार्थियों का हमने चयन किया वो है ज्योति शेखावत पुत्री सतवीर सिंह जी, दूसरे स्थान पर अभय शर्मा मुकेश कुमार शर्मा और तीसरे स्थान पर साक्षी सैनी श्रीराम जी सैनी। बच्चों को इस प्रकार अपना सम्मान प्राप्त करते देखकर यदि आपको अच्छा लगता है तो तालियां बजी जानी चाहिए। बच्चों की ये वेशभूषा, बच्चों ने मेहनत की, तैयारी की और उसके बाद स्थान प्राप्त किया, यदि उनका सम्मान अभिनंदन नहीं करेंगे तो उनको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि तालियां जारी रहनी चाहिए। चारों ग्रुपों में हमने 10-10 बच्चों का चयन किया। विधिवत इसकी परीक्षा ली गई, कॉपियां जांची गई और जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर स्थान प्राप्त किया, आज उनका सम्मान हम यहाँ करने जा रहे हैं। चारों ग्रुपों में क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक पर जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया उन सभी का सम्मान। और अभी इस पहली कड़ी में हमने पहले 3 बच्चों को, प्रथम 3 स्थान जिन्होंने प्राप्त किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका हमने सम्मान किया। और अगली कड़ी में हम 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो बच्चे रहे हैं उनका भी हम स्वागत सम्मान करेंगे। उनके अभिभावकों से निवेदन है कि वो तैयार रहें। प्रेम जी सैनी कृपया संपर्क करें। प्रेमचंद जी सैनी जहां कहीं हो कृपया मंच के पास संपर्क करें। ये था चारों ग्रुपों का प्रथम 3 स्थान पर प्राप्त प्रतिभावान छात्रों का सम्मान। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए एक विद्यालय की छात्राओं द्वारा
एक सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब आपके समक्ष एक सांस्कृतिक प्रस्तुति विद्यालय की छात्राओं द्वारा बहुत ही मन से तैयार की हुई, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। हमारी बेटियां जो छुट्टियों में भी अपने हुनर को निखारती हैं, अपना समय देती है, और हमारे स्टाफ सदस्य पूर्ण मनोयोग से उन्होंने ये तैयारियां करवाई। और अब आप आनंद लीजिए सांस्कृतिक प्रस्तुति विद्यालय की छात्राओं द्वारा। केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे देश रे पधारो नी मारे साजे गोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। माथे साजे गोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। ओढ़ की चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रमबाई 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 सा। चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिवजी थारो नाम रचायो जी। सोनरी मंगवाई पे रंग लाल चढ़वायो जी, हाथारी मेहंदी में पिवजी नाम थारो रचवायो जी। तेरे कारण रावण ने घड़ो सजाई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रमबाई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रमबाई सा। जाओ जी मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे मर टिकड़ में जागी हो कणी गंगा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 झुम। मर टिकड़ में जागी हो कणी गंगा में भारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 झुम।
उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि अब डॉक्टर समीर जी शर्मा की आमिर खान जो बहुत बड़े बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम टेलीविजन पे आया करता था, सत्यमेव जयते। उसमें डॉक्टर समीर जी शर्मा का इंटरव्यू आमिर खान ने लिया था। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी कुछ ही देर में आपके बीच साझा होने वाली है। जेनेरिक मेडिसिन के प्रणेता प्रेरक डॉक्टर समीर जी शर्मा, जिन्होंने राजस्थान के अंदर एक ऐसी अलग जगाई कि सभी चिकित्सालयों के अंदर वो है दवा निशुल्क दी जाती है। जोरदार तालियों से सम्मान करें डॉक्टर समीर शर्मा जी का। वो वही दवाइयां उन्होंने 2000 कीमत में उनको मिली एक दुकान में, और जो जेनरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली, 300 में मिली। ये कैसे मुमकिन है? जो दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है, पर जो दवाइयां हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई बार तो 50 गुना से भी ज्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं। WHO कहता है कि स्वतंत्रता के 65 वर्ष पश्चात आज भी 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स रेगुलर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जेनेरिक नाम, जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जो इसके अंदर जो दवा है उसका नाम है। दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का? 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट के मार्जिन जो हैं वो सब मिला करके उतने की ही पड़ती है। आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिए, जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेसिकली धारा के विपरीत बहने का एक प्रयास है जी। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम 100 साल से भी पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोगों के लिए हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से बदला जा सकता है। हमें सबको एक समन्वित, एक संगठित प्रयास करने की जरूरत है। तो कुछ भी नहीं है, कोई नई फैक्ट्री खोलनी नहीं, कोई नई दवा नहीं बनानी, ये सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है। डॉक्टर समित, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने। एक बार जोरदार तालियां इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। हमने देखा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय किस प्रकार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और जनहित के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। बंधुओं, काम कई तरह से होता है। एक व्यक्ति काम हाथ से करता है, एक व्यक्ति काम दिमाग से करता है और एक व्यक्ति काम दिल से करता है। आपकी कार्यशैली और आपका कार्य करने का तरीका देखकर ये लगता है कि आप दिल से काम करते हैं। तभी तो गरीब को गणेश मानकर निशुल्क दवा योजना जैसी योजनाएं शुरू करवाना, जेनेरिक दवाओं के लिए इतना बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा कर देना, लोगों में जागरूकता फैलाना, इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से आप निरंतर जुड़े हुए हैं। और आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी की एक छवि होती है कि वे बड़े रूखे शुष्क व्यवहार वाले, अपने काम से काम वो रखना। आप निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, ये हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा। और साथ ही अभी कुछ समय पहले सम्यक संस्थान द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। उस सेमिनार की कुछ क्लिपें मैंने भी देखी सम्यक संस्थान में, उसकी कुछ क्लिपें मैंने भी देखी। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए जो मोटिवेशनल स्पीच आजकल होते हैं वो मैंने सुने। एक प्रशासनिक अधिकारी छात्रों के लिए इतना कुछ सोच सकता है, ये अपने आप में एक अविस्मरणीय चीज है। क्योंकि इनके पास काम का बोझ इतना होता है, प्रशासनिक काम इतने होते हैं, इतना दबाव होता है कि समय नहीं निकल पाता। फिर भी अपने कार्य में से समय को समायोजित करके जनता जनार्दन के लिए, स्वास्थ्य का मिशन हो चाहे शिक्षा का मिशन हो, उसमें आप समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका वो अनुभव, आपका वो मोटिवेशनल स्पीच, ये हमारे बच्चों को भी उसका लाभ मिले। बहुत ही सम्मान के साथ जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर समित जी शर्मा।
नमस्कार। हंस वाहिनी विद्यादायिनी माँ सरस्वती के मंदिर में, सुंदर प्रांगण में, और हमारे दोनों तरफ सरस्वती है, इधर भी सरस्वती और उधर भी माँ सरस्वती। तो सबसे पहले क्या हम उनकी आराधना करें फिर बात शुरू करें? क्या सब प्रार्थना करने को तैयार हैं? प्रार्थना कुर्सी पर बैठकर करना चाहेंगे या श्रद्धा के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे? सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना है, और जिसको वो प्रार्थना याद नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आएगी वो प्रार्थना, आप वहां देखते जाएं। हमको मन की शक्ति देना। तैयार हैं? तैयार हैं? वो हाथ खड़ा करें। विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। एक अंतर और गाएंगे, सब तैयार हैं? भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। आप बैठे अपने स्थान पे, और सबसे पहले मां सरस्वती का ध्यान करने के बाद प्रथम पूज्य गणनायक गजराज, उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, मैं बच्चों के नाम पूछ रहा था जिनको पुरस्कार मिल रहे थे, तो एक बच्चे ने बताया मेरा नाम विनायक है। तो मेरे पास 2 कारण हो गए आपको एक बात बताने की जो आपको प्रेरित करेगी। गणेश जी के भाई का नाम था, कौन बताएगा बच्चा? क्या नाम था? किसने बताया? कार्तिकेय। आपका नाम बताइए मैडम, खड़े हो आप। क्या नाम है आपका? किरण जी। तो किरण जी के लिए सब लोग ताली बजाएं पहले। बैठिए। वैसे आपके लिए बजा सकते हैं। आपका क्या नाम था? मनोज सोनी जी। चलिए, तो
भगवान शिव और मां पार्वती के दो बच्चे थे, एक विनायक और एक कार्तिकेय। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनको लगा माता पिता को कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो माता पिता ने एक शर्त रखी कि जो भी संसार का चक्कर लगाकर पहले मेरे पास आएगा उसी का विवाह पहले करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि गणेश जी का वाहन होता है चूहा, भगवान कार्तिकेय का वाहन था मयूर। तो जैसे ही माता पिता ने शर्त रखी, वो अपने मोर पे बैठे और संसार का चक्कर लगाने चले गए। गणेश जी अधिक बुद्धिमान भी थे। उनके दिमाग में आया कि ये तो चूहा है, मैं इतना भारी, मैं बैठ जाऊंगा तो चल भी नहीं पाएगा। गणेश जी के बाद विचार आया और एक बहुत पवित्र विचार उनके आया। उन्होंने शिव और पार्वती का एक चक्कर लगाया और उनके पैर छू लिए। और जब शिव जी ने पूछा कि हे विनायक, तूने ये क्या किया, तो गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरा संसार है, मैंने आप दोनों के चक्कर लगा लिए, मैंने संसार का चक्कर लगा लिया। और फिर गणेश जी का विवाह हुआ और इतना जोरदार हुआ कि उनकी दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। कार्तिकेय, शायद ये नाम आपने सुना होगा, पर अगर हम हिंदू कैलेंडर को देखें तो उसमें जो 8वां महीना होता है वो कार्तिक का महीना होता है। ये वही भगवान कार्तिक हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज से 117 साल पहले जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां एक ऐतिहासिक घटना हुई और सेठ जौहरमल जी जालान ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया और वो जो शिक्षा का बीज जो उन्होंने बोया, वो आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में हम सब लोग यहां बैठे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आशीष शर्मा जो यहाँ पुरस्कार दे रहे थे तो उनके फादर भी साथ आए थे, तो बोल रहे थे कि इसके परदादा भी यहाँ पे टीचर थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है। मैं ऐसे समय पे उस व्यक्ति को जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, हमारे बीच में तो नहीं है, पर हमारे दिमाग में है, हमारे जहन में है, आज भी प्रासंगिक हैं, उनको बहुत श्रद्धा से और आदर से याद करना चाहता हूं। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं